Let's wait 2 minutes so that students can join. Please do text me if you have joined. Okay. Let's start with chapter 3, that is accounting ratios. We have completed our 2 chapters in FRFSA, and in FM we have already completed 3 of chapters. That means our 50% syllabus is already done. Alright. So today we are going to start with the FRFSA chapter, that is accounting standards, that accounting ratios, that is about your accounting policies. How will you intellect your ratios of accounting of your companies? लेट मी एक्सप्लेन यू मोर. जैसे हम लोग कंपनीज में बहुत सारे डेटाज यूज करते हैं, बहुत सारे इनफ्लो आउटफ्लोज को देखते हैं, परचेज को देखते हैं, सेट्स को देखते हैं. सो ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इट्स ऑल अबाउट आवर अकाउंटिंग रेशियोज, दैट इज योर रेशियोज रिगार्डिंग योर असेट्स टर्नओवर, योर लायबिलिटी, योर debts turnover, debtors turnover, your creditors turnover. These all things we are going to look over in this accounting ratio chapter. So it is of almost approximate 20 marks chapter. So 5 maybe in your questions like your theory subjects, theory topics, and 15 marks of your sums, or both can be come in sums only practical. That can also be happen. Like we cannot assure you exactly 5 marks में आपको वो theory ही देगा और 15 marks में वो आपको practical sums ही देगा. That may be and may not be. But simultaneously आपको theory भी करके रखना है, because in your 6 semesters theory is important for each and every chapter. Don't just go for any options, कि लाइक आप अगर ये नहीं पढ़ोगे, सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाओगे, मे बी सम ऑफ द सम्स लाइक कभी कभार क्या होता है कि आपके जो लैंग्वेजेस है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. तो सपोज इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर थ्योरी आल्सो बिकॉज यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर इट. ओके, so for a better option, for you have a choice, so go for the theory as well as your practical sums. So here we are talking about 5 marks maybe come, there are sums of 5 marks also, and there are sums of 10 marks, 15 marks, everything is there in this PDF, but you have to do all of it. I hope it is clear now. Let's begin with the definition first. Okay. See, what does it define? What do you mean by accounting ratios? Accounting ratios. Just a minute. Okay. Accounting ratios, often referred to as a financial ratio, means what is the ratio between your financial inventories, between your financial assets or liability, what I have told you just earlier before, are the key tools used in analysis a company financial statement. When if I say here is 2 light and 1 AC, suppose, so that will be AC and light. If I say you what is the proportion between it, that is 2:1. Light and AC is equal to 2:1. Just like that, when we can find in a ratio form, we can absolutely understand what is asset behind your company, like what the company is holding your assets, what type of companies is holding how many your liability. These are going to be understood by your financial statements ratios. They provide insights. Insights means the things you are going to see about it.
Insights means to approximate. You can make this words to know about C into various aspects, various forms. Like from here, if I look here, there are so many students sitting with me. So it is one of my insight. If I show this row is blank, this is my another type of insight. So insights is basically you can have various types, various varieties, various aspects of what business performance, such as what is the business performance are based on, profitability, liquidity, efficiency. So let's begin with the first term, profitability. What does it mean? Profitability means, the profit comes after you are earning in a company. Anything, if you are earning, if you are net profit after deducting every your expenses, your taxes, that is your profitability. Liquidity, when the company turns into liquid your assets, when you are going to liquidate your assets into your monetary terms, your money in cash, that is cash and cash equivalent. Efficiency, how efficiently your company is working out. And solvency means when the company is belong to get solvent, that is bankruptcy. When the company is like going to be like जब कंपनी बंद होने वाला होता है, so we are going to have this solvency process so that it can pay off all the debt, all the creditors liabilities, so that जब भी हम लोग का बैंक्रप्सी होता है, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, सो लेट मी गिव यू अ हिंट अबाउट इट. जब भी बैंक्रप्सी होता है कंपनी का, तो कंपनी क्या करता है, अपने जितने भी एसेट्स है उसको बेच के, जितने भी उनके क्रेडिटर्स थे जो लाइबल है पे करने के लिए लाइक रिसीव करते हैं, तो उन लोगों को जब भी कंपनी पे बैक करती है, सपोज कंपनी के पास 100 या 200 रुपीज है, आई एम जस्ट लेटिंग ए नंबर, ओके. सो अगर सपोज मान लो 200 रुपए और उसका क्रेडिट है 300 रुपए का, बट वो कितना दे पाएगा, वो 200 दे पाएगा. बट कंपनी के ओनर, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, नो डाउट, बट आफ्टर पेइंग दैट 200 रुपीज, इफ देयर इज अगेन लेफ्ट विद ड्यूज, तो कोर्ट यही बोलता है कि आप अपने पॉकेट से दो, ठीक है. अब उसके पॉकेट में भी अब नहीं बचा सपोज, तो फिर तो खत्म है बात वहीं पे, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता. लेकिन अगर स्टिल उसके पास है, तो उसको पूरा का पूरा उसको पे बैक करना पड़ेगा. दैट इज योर सॉल्वेंसी. सो दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड यूजिंग डेटा फ्रॉम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब क्या है, जो मैंने स्टेटमेंट्स आपको बताया, दैट इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेक होल्डर्स फंड, ये सब कुछ लेकर ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. सो ऑल दीज आर गोइंग टू हैव अ अकाउंटिंग ratios so that we can understand a company's financial health and make informed decisions. अगर हम लोगों को कंपनी का हेल्थ पता चल जाएगा, तो हम लोग डिसीजन लेने पे सामर्थ्य रहेंगे कि एक्चुअली में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है. These all are we are going to find out by the accounting ratios. I hope it is clear. ठीक है. Here are some common types of accounting ratios. What are the types? These are the common types. That is liquidity ratio. So when a company's ability to meet short-term obligations, जब कंपनी का एक वो होता है, जैसे कंपनी मजबूर होता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मींस योर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ओके. शॉर्ट टर्म लायबिलिटी तो हम लोग जब फुलफिल कर पाते हैं, हम लोग वो नीड्स को मीट कर पाते हैं. What I'm talking about, needs को हम लोग meet कर पाते हैं. That is short term, means you're under 12 month. Example, current ratio, quick ratio. We're all going to understand what is quick ratio, what is current ratio. We are going to understand. So इतना बस मान लो, this is comes under liquidity ratio. Profitability ratio indicate करता है how to company generates a profit. Simple. Okay, so example, what it is example of gross profit margin, ROE, that is return on equity. We are all going to study about it. Profitability means what are the profit regarding a company is operating or generating. All right. Efficiency ratios, how assets are well uses its asset. हम लोग को ये देखना है कि मेरा जो कंपनी है वो मेरे assets को, मेरे नहीं, कंपनी के एसेट्स को ही किस और बेहतर तरीके से उसे यूज कर सकता है. दैट इज योर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो. ऑल द फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू लर्न.
Don't worry about it. Okay. Inventory means your stock turnover ratio. Assets means you know about it. Solvency ratio already we have understand what the solvency means here. Evaluates. ये क्या करता है? Evaluates to see or to analyze. Evaluate करता है to analyze a company's ability to sustain operations in a long term debt to equity ratio and interest coverage ratio. So these are the common accounting ratio types. Is it clear about it till now? Okay, let's continue with it. Objectives. You know, what are the objectives of accounting ratio? The objective of accounting ratio is to provide insights. Insights means to see into a company's financial performance and health. They serve various purposes such as क्या purposes है, what are the objectives, these are very important. Okay, analyzing financial stability कि आपका जो भी financial health है क्या वो stable है, क्या वो ऐसे स्टेज में है कि वो कंटिन्यू प्रोसेस में चल सके. आई होप इफ यू रिमेम्बर व्हाट डज इट मीन, दैट इज गोइंग कंसर्न concept or method, anything you know. Alright, तो ये हम लोग को देखना है. We are going to analyze, we are going to evaluate, we are going to see, we are going to insight all this financial stability into our company so that our company can meet short-term obligations and long-term obligations. Okay, liability that is. Okay, next is assessing profitability. Profit को कैसे हम लोग company generate करें. The same point is again coming, which we have just read. Yeah, profitability ratio. Same thing is assessing profitability. That is how effectively a company generates profit from its operations. The main operation target what the company belongs to, उसको चलाते चलाते company कितना profit operates कर सकता है. Third is monitoring and operational efficiency. Ratio measures how well a company utilizes its ratios such as asset and इन्वेंट्री. किस रेशियो में और कितने अच्छे तरीके से, रेशियो हम लोग को देखना है कि कितने अच्छे तरीके से कंपनी हमारे रिसोर्सेस को, हमारे एसेट्स को, हमारे स्टॉक्स को, हमारे इन्वेंटरी को किस तरह से कंपनी क्या करता है, यूटिलाइज करता है, उसका एक रेशियो बनाना है. ऑलराइट, सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग. अब ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस करें, क्यों कर रहे हैं, टू मेक अ इन्फॉर्म डिसीजंस, टू मेक अ लॉजिकल डिसीजंस. इन द वेरी first class I have already told it is to make logical decisions. The same thing is explaining right here कि अगर आप इतने सारे points को याद रख रहे हो, इतने सारे points को आप evaluate कर रहे हो, आप देख रहे हो, analyze कर रहे हो, why you are looking all this kind of stuffs, just to make a supporting decisions regarding your ratios. Comparative analysis, how you can able to compare between companies, you know, any of the companies with your same categories or within an industry to evaluate relative performance. All right, here if you have any doubt, mark it, I'll just explain it. Okay, let's come to the importance. Some of the points you can also write in importance. Okay, so the importance of the accounting ratio lies in their ability to help stakeholder understand and evaluate financial well-being of a business. Here's why they are crucial. That is importance. Why it is important? Let's find out. Financial insights. Accounting ratios provide a clear picture of a company's financial health and operational परफॉर्मेंस. तो ये जो हम लोग का अकाउंटिंग रेशियो है, इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, एक क्लियर पिक्चर पता चलता है कि हमारे कंपनी में क्या चल रहा है, हमारे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, हमारा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा है. इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिसीजन
मेक कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, एवरीथिंग, दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज रेशियोज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। अगर कोई भी मेरे इन्वेस्टर है जो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी मेरे क्रेडिटर्स है जो मेरे कंपनी में पैसा देना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, सब कोई डिपेंड करते हैं हमारे इस रेशियोज पे कि हाँ, जैसे रेशियो जैसे कैसे हो गया, सपोज मेरा कंपनी 70% प्रॉफिट कमा रहा है, कैसे आपको पता चलेगा हाँ ये प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी, क्योंकि ये जो 70% है ना, जो भी ऑल टुगेदर है, आपको वो नहीं देखने कि 100 है बाय 500 है या 1000 में 50% है, वो नहीं, 50-70% मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि ऑल टुगेदर मेरा 70% प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रहा है। दैट मीन्स आप किस पे डिपेंडेंट हो? 70% पे। ऑल राइट, अबाउट द इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लोन्स हो सकते हैं जो हमारे क्रेडिटर्स देंगे, इन्वेस्टर्स देंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो सकती है जो हमारे मैनेजमेंट देते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस जो हमने ऊपर पढ़ा कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, हमारे बेंचमार्क कर सकते हैं, इन्वेंट्री इंडस्ट्री कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि मेरा स्ट्रेंथ कैसा है, उसका वीकनेस कैसा है, उसका स्ट्रेंथ कैसा है और मेरा वीकनेस कैसा है। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, अगर हम लोग इतनी सारी चीजों को एक साथ कंपेयर करके चले तो हम लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि हमारा जो सिग्नल है वो कैसे, मतलब बहुत पहले हम लोग को समझ में आ जाता है कि हम लोग को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, मतलब यू नो early, as soon as possible you are going to understand कि what the financial distress is going on, what does it mean, reveal the financial distress। suppose financially आपके कंपनी में कुछ भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा है, एक मिनट, importance and objectives are not both same, but some of the points you can write also। अगर आपको importance याद रहता है वो भी हमारा some of the objectives ही कहलाते हैं, you know it is an indirect way। अगर आपको दोनों याद है तो ट्राई टू राइट दिस पॉइंट्स, ऑब्वियसली 4 से 5 पॉइंट सेम रहता है, बट आप प्रॉपरली आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, एक भी इंपॉर्टेंस नहीं लिख रहे हो तो दिक्कत है। समझ में आया? ये पूरा ही पढ़ना तो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी इससे निकल में आ जाएगा और आपका इंपॉर्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, एक ही बात है कि बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्या क्या चीजें हमारे लिए मदद करती है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, और क्यों ये जरूरी है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस। दोनों ही सेम है, अगर वो चीजें वो नहीं कर रही होती तो ये इंपॉर्टेंट होता ही नहीं ना। दे बोथ आर कोरिलेटेड बट नॉट सेम। ओके, सो हम लोग को ये पता चल जाता है बहुत पहले कि हम लोग के कंपनी में क्या क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, और द इफेक्टिवनेस और द एफिशिएंसीज अर्ली, किस तरह से इनएफिशिएंट मेरा कंपनी का काम चल रहा है वो हम लोग को बहुत जल्दी पता चल जाता है, और जल्दी पता चलने पे क्या होता है, हम लोग के पास फायदा होता है कि हम लोग बहुत जल्दी उसको रिकवर कर सकते हैं। अलाउ होता है करेक्ट मेजर्स टू बी टेकन बिफोर प्रॉब्लम एस्केलेटेड। जैसे सपोज मान लो कि अगर आपका आप रेगुलर हेल्थ बॉडी चेकअप कराते हैं तो उससे क्या होता है, कभी भी कोई बीमारी अगर आपके शरीर में एंटर कर रहा है तो वो आप अर्ली एज सुन डिटेक्ट कर लेते हो। जैसे ही आप उसको डिटेक्ट करते हो आप उसका प्रिकॉशंस लेने लगते हो, आप उसका क्योरिटी में ध्यान देने लगते हो। अब आप प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। अब अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो तो आपको बाद में जाके एकदम जब तक पकड़ में आएगा तब तक बहुत हो सकता है ना, बहुत देर तक उसने अपना घर बना लिया हो आपके शरीर में, तब वो क्या हो जाता है, तब आपको क्योर ही करना पड़ेगा। क्योर में देयर इज अ चांसेस, ऑलवेज देयर इज 50-50 क्योर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जितना जल्दी आप उसको समझोगे उतना जल्दी आपका क्योर होगा, मतलब कि बढ़ने का चांसेस ही नहीं रहता है। तो सेम इट हैपेंस विद द प्रॉब्लम्स आल्सो, इनएफिशिएंसीज ऑफ द ऑपरेशंस आल्सो इन अ कंपनी। सो अगर आप जितना अर्ली एज अर्ली पॉसिबल आप अपना प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करोगे उतना ही जल्दी आपको ये समझ में आएगा कि हमको उससे निकलना कैसे है। एफिशिएंसी मॉनिटरिंग, बस आप किस तरह से एफिशिएंट हो इसको भी हम लोग को मॉनिटर करना है, और कैपिटल आर बीइंग यूटिलाइज, किस तरह से हमारे कैपिटल्स को भी यूटिलाइज किया जा रहा है। सो जस्ट लाइक दैट, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ मेरिट्स देखेंगे कि इससे हम लोग को और क्या क्या फायदा मिलता है। मेरिट्स एडवांटेजेस आर इक्वल। ओके, क्लैरिटी ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, सेम पॉइंट इज रिपीटिंग, ये हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग, सेम पॉइंट। ट्रेंड एनालिसिस, अब इससे क्या होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं रेशियोज को ओवर टाइम। कैसे कि पिछले साल मेरा कैसा था, उसके पिछले साल मतलब प्रीवियस 5 इयर्स को हम लोग इस साल से कंपेयर कर रहे हैं।
ये चीज हम लोग कैसे करते हैं, रेशियोज से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अरे पिछले साल तो मेरा 50% प्रॉफिट हुआ है, इस साल तो मेरा 45 ही हुआ। तो ये जो कंपैरिटिव है ना, ये हम लोग कर सकते हैं। अब सपोज मान लो पिछले साल आपका 100 रुपीज खर्चा हुआ, उसमें से आपका 50% प्रॉफिट हुआ, आप ये ऐसे बोलो। इस साल आपका 50% नहीं, आपका जैसे सपोज मान लो आपने 500 रुपए खर्चा किया, 500 रुपए में आपका 50% प्रॉफिट हुआ। बट परसेंटेज से हम लोग को क्या पता चल रहा है, हम लोग को प्रॉफिट पता चल रहा है। आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रॉफिट में हो, आप लॉस में हो। लेकिन यहीं पे अगर आप कैलकुलेशंस करने बैठते हैं, अच्छा तुम्हारे एक्सपेंसेस इतना था, तुम्हारा कॉस्ट इतना लगा, तुम्हारा इनकम इतना है, मतलब तुम्हारा इतना प्रॉफिट हो गया। अच्छा उसके बाद अगर इस साल में तुम्हारा 500 खर्चा था, 500 रुपए में हम कैसे उसको इंटरेक्ट करें कि ये 100 था, ये 500 था, उसमें 50 हुआ, इसमें 50 हुआ, कौन सा बेटर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में अपने रेशियोज को रखते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग को प्रॉफिट का रेशियो से मतलब होना चाहिए कि कितना कॉस्ट हुआ, उन सबसे ही तो ये निकला है। तो उसी से हम लोग को क्या समझ में आता है, ओवर टाइम हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछले साल हमारा क्या हुआ था, उसके पिछले साल हमारा क्या हुआ था, इस साल हमारा कैसे जा रहा है, हमारा हाफ ईयरली कैसे चल रहा है। दीज ऑल आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड। बिजनेसेस कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड वेदर दे कैन इम्प्रूव और डिक्लाइनिंग। अब इस तरह से समझ पाते हैं कि अगर मार्केट में कुछ नया चल रहा है सपोज, तो मार्केट का वो जो नया चीज है अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ऑब्वियसली आपका बिजनेस एक अडॉप्टिव नेचर का होना चाहिए। अगर मार्केट की चीजों को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्या उससे हमें समझ में आ रहा है, ये सब कुछ हम लोग का देखना हमारा फर्ज रहता है। दैट इज योर ट्रेंड एनालिसिस। व्हाट इज बेंचमार्किंग, रेशियो अलाउ करता है कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अलग अलग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करता है, कॉम्पिटिटर्स के रेशियोज को कंपेयर करता है, हाईलाइट करता है कौन कौन सा एरिया में ये एक्सेल्स और भी बहुत ज्यादा उसको नीड है इम्प्रूवमेंट की। ये सब कुछ हम लोग कैसे देखते हैं, बेंच मार्किंग। अर्ली प्रॉब्लम डिटेक्शन, बहुत जल्दी हम लोग प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाते हैं और डायग्नोस कर पाते हैं कि उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको सॉल्व कर सके। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, हमारा जो रिसोर्सेज है, हमारा जो असेट्स है, हमारा जो इन्वेंटरी है, हमारा जो कैपिटल है, उसको यूटिलाइज किया जाए द बेस्ट पॉसिबल इफ वी कैन इट। ओके, एंड वर्सेटिलिटी, they are applicable to various areas like liquidity, profitability, solvency and efficiency, providing a comprehensive view of financial performance. Okay, demerits are coming, so look over it. If you have any doubt, do ask me. मैं देख लो, कोई डाउट है तो अभी पूछो। सॉल्वेंसी, देखो सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, जब भी कंपनी जैसे सपोज कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसके पास 500 रुपए है, वो इन्वेस्ट कर रहा है अपना 50%, और जो अपना डिविडेंड देता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं, सब कुछ को हटा के अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है और वो डूबते जा रहा है, बार बार वो लॉस फेस कर रहा है, अगर वो लॉस फेस करेगा तो वो आपको रिटर्न कैसे देगा। जैसे हम लोग अगर बैंक वगैरह में पैसा डालते हैं तो बैंक हम लोग को इंटरेस्ट कैसे देता है, वो उस पैसे को कहीं और पे खटाता है। अगर वो वहां से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा तो आपको क्या लगता है वो आपको इंटरेस्ट दे पाएगा, वो अपने घर से थोड़ी ना पैसा गिरेगा, पहला चीज। दूसरा बात ये है कि वैसे कंपनीज में भी क्या होता है, जब हम लोग लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, क्रेडिटर से लेते हैं, इन्वेस्टर से लेते हैं, जब इन्वेस्टमेंट लेने के बाद जब कंपनीज पैसा को दूसरे मार्केट में खटाता है और उसके बाद वहां से जब वो प्रॉफिट आता है, उसके बाद वो क्या करता है, उस प्रॉफिट का ही सम ऑफ द इंटरेस्ट वो थोड़ा 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 करके सबको दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपने 100 रुपए दिया, मुझे 200 रुपए रिटर्न मिला, उसको हो सकता है वो 100 रुपए से 500 रुपए रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये वो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे अगर वो 100 रुपए इन्वेस्ट करता है और 100 रुपए ही वो हार जाता है,
तो आपको 200 तो छोड़ो, वो 100 रुपए भी रिटर्न कैसे करेगा? जब वो 1 पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न नहीं करे, 2 पीरियड नहीं करे, 3 पीरियड नहीं करे, 4 पीरियड नहीं करे, ऐसे करते-करते आप तो अपना ऑब्लिगेशंस उठाओगे ना, आप तो अपना राइट उठाओगे कि क्या हुआ? मेरा पैसा तो मेरा डूबता जा रहा है। तब वो क्या करता है, जैसे आप केस करते हो, 10 जन का पैसा नहीं आता है, उसके बाद क्या होता है, फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि वो आपका ट्रांज़ैक्शंस देखेगा, आपका नहीं, मतलब कंपनी का ट्रांज़ैक्शंस देखेगा। कंपनी का जैसे ही वो ट्रांज़ैक्शंस देखता है, उससे उसको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, द कंपनी इज़ फेसिंग लॉसेस। तो जैसे ही लॉस फेस करता है, आप सपोज़ मान लो कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं। अब वो असेट को तो ट्रांजैक्शन नहीं ना करता है, जैसे वो पैसे को ट्रांजैक्शन करता है, जैसे पैसे को वो बाहर मार्केट में खटाता है। अब एसी को थोड़ी बाहर मार्केट में खटाएगा कि ठीक है, मैंने एसी खरीदा है, तुम अपने घर पे जाके यूज करो, 10 दिन यूज करो, 10 दिन का भाड़ा उनको दे दो। ऐसा बहुत रेयरली होता ही है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, तो ये जो असेट्स उसके पास रखा हुआ है, जैसे फर्नीचर हो गया आपका, टीवी फ्रिज, जैसे आपका एसी हो गया, आपका कोई भी बॉन्ड्स हो गया, कोई शॉर्ट टर्म आपका एसेट हो सकता है पेपर्स में, ये सबको कोर्ट क्या करता है, उसको बेचने के लिए बोलता है। ठीक है, अब जैसे ही कोर्ट उसको कैश में कन्वर्ट करता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स हमारे लिए वो है, लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म असेट्स है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है कैश में कन्वर्ट करने के लिए। बट आपका अगर सॉल्वेंसी पीरियड है तो कोर्ट आपको बोलेगा ही कि आप उसको कन्वर्ट करो, आप एसी बेच दो, फ्रिज बेच दो, जो भी आपका ऑल टुगेदर कंपनी का सब कुछ है, वो जैसे ही आप बेच दोगे, उससे कुछ पैसे आएंगे, उस पैसे से आपको उस क्रेडिटर्स, उस इन्वेस्टर्स, जिससे भी आपने लोन लिया बैंक वाले को, सबको आपको पेमेंट करना है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर आपके पास 100 रुपए है, आप सबको 100 ही तक दे सकते हो ना, इससे ज्यादा फिर कोर्ट आपसे बोलेगा आप अपने घर से लेके, घर में भी जितना रहेगा उतना ही दे पाओगे, अगर बैंक की अकाउंट खाली हो गया तो आप कहाँ से दोगे? तो फिर उसको बैंकरप्सी का एक तो स्टैम्प दे दिया जाता है, जैसे परमानेंट बैंक को क्लोज कर दे, बैंक ने कंपनी को क्लोज कर दिया जाता है कि नहीं, ये कंपनी जब चल ही नहीं पा रही, जब प्रॉफिट दे ही नहीं पा रहे लोगों को, तो ये चलेगा कैसे मार्केट में? तो ये जो पीरियड चल रहा है ना, जिससे आप अपने सब कुछ को बेच के आप पैसे को दूसरों को दे रहे हो, इसी को हम लोग सॉल्वेंसी बोलते हैं। सॉल्वेंसी मतलब अब वो लिक्विडेट हो रहा है, मतलब सारी चीजों को वो सॉल्वेंट, मतलब अब वो बेरोजगार हो जा रहा है। अब क्लियर है सॉल्वेंसी क्या होता है? अब कंपनी को ये देखना पड़ेगा ना कि आप ऐसे टर्म्स में पहुंचो ही ना जहाँ पे आपके कंपनी को सॉल्वेंट होना पड़े। अब देखो डिमेरिट क्या है, जहां पे मेरिट है वहां पर डिमेरिट है, डिपेंड ऑन एक्यूरेट डेटा। अब ये जो रेशियो है हमारा, वो हमारे एक्यूरेट डेटा पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर आपने 100 रुपए किया, कॉस्ट लग रहा है आपका 100 रुपए, आप वहां से प्रॉफिट कमा रहे हो सारे एक्सपेंसेस को हटा के 75, तो ये आपका रेशियो में आ रहा है, लेकिन आप इनडायरेक्ट वो कर रहे हो, इनडायरेक्ट कोई कॉस्ट ले रहे हो 200 का कॉस्ट ले रहे हो। अब आप तो इनडायरेक्ट कॉस्ट 100 को ले ही नहीं रहे हो, आप 100 में 75 को देख रहे हो, लेकिन ये होना एक्चुअली किसमें चाहिए था, 200 में 75 होना चाहिए था। तो रेशियो तो आपका इनएक्यूरेट हो गया ना, बट लोगों को क्या लगेगा, आपका 75 आपका प्रॉफिट है, जबकि ये नहीं है। 200 में अगर आप करोगे तो ये 75 थोड़ी ना प्रॉफिट होगा। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसीलिए ये डिपेंड करता है आपका एक्यूरेट डेटा पे। अगर आपका डेटा इनएक्यूरेट है तो ये आपका रेशियो भी क्या देगा, इनएक्यूरेट देगा। समझ में आया? Ratios are only as reliable, means dependent on the financial data used. Errors or manipulations in financial statements can lead to misleading results. अगर एरर होगा या कुछ भी आपका मैनिपुलेटिंग नहीं हम लोग इतना ले रहे हैं, कुछ भी सपोज एनी स्कीम, उससे आपका क्या होगा, रिजल्ट में मिसलीड हो जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंसाइट्स, लैक ऑफ मतलब क्वालिटी। कभी कभार क्या होता है, इसी चक्कर में अगर ये जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया, अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो आपका जो क्वालिटी है पेपर्स का वो इनएक्यूरेट हो जाएगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाएगा। अब इसको हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर सपोज मान लो कि आपका कोई कपड़ा का ब्रांड है, आप कपड़ा प्रोडक्शन करते हैं, आप एक सॉर्ट ऑफ जो धागा होता है उसी को यूज करते हो, इसलिए आपका कपड़ा इतना फेमस है।
द सॉफ्ट वूल आप यूज करते हो, एनीथिंग, ठीक है। अगर वहीं पे आपका वो स्टॉक खत्म हो जाए, आप बोलोगे छोड़ो हटाओ, रास्ते में भी तो स्टॉक मिलता ही है, उसी से ले लेते हैं, तो आपका क्वालिटी इनएप्रोप्रिएट होगा, आप दाम सेम रख रहे हो, कस्टमर को वही चीजें आप बेच रहे हो सेम दाम पे, लेकिन आपका कॉस्ट कम पड़ गया, साथ ही साथ आपका क्वालिटी भी खराब हो गया। तो इन सब चीजों को भी देखना हमारा काम है। तो रेशियो फोकस करता है सोनली, मतलब सिंगल, solely means अकेले, on the numerical data and ignore करता है qualitative factors like management efficiency, जैसे morale which also impact on a business। जैसे ये बोल रहा है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 75 को बार बार देखते हैं कि 75 हमारा प्रॉफिट है, 75 हमारा प्रॉफिट है, लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उस 75 में क्या क्या फैक्टर इंक्लूड है या नहीं है। क्या पता उस फैक्टर में 75 में आपका एफिशिएंसी किस तरह से कंपनी काम करे वो नहीं है, उसमें आपका जो क्वालिटी है, आप कितने क्वालिटी में बेचो। 75% मेरा प्रॉफिट हो रहा है, आप कैसे बताओगे कि मेरा क्या क्वालिटी है, आप तो प्रॉफिट देख रहे हो, ये इग्नोर हो जाता है, तो ये हट जाता है ना। ये सब चीजें क्या है, हमारे लिए डिसएडवांटेज है, ठीक है। इंडस्ट्री वेरिएबिलिटी, जैसे बेंचमार्किंग मे नॉट आल्सो बी इफेक्टिव, कभी कभार बेंचमार्किंग भी हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होता है। एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिफर, कभी कभार इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हमारे लिए डिफरेंट होते हैं। सो व्हाट्स नॉर्मल फॉर वन इंडस्ट्री मे बी अनएक्सेप्टेबल फॉर अनदर। जो हो सकता है कि एक इंडस्ट्री के लिए कुछ पॉइंट ऑफ थिंग्स इंपॉर्टेंट है या उसके लिए वो नॉर्मल है, हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा चल सकता है। हो सकता है सेम थिंग दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे मतलब सपोज मान लो कि जैसे आज मेरे को तुम लोग में से कोई एक जन बोला ना कि थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे, अभी पढ़ने का, थ्योरी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, तो अब सपोज मान लो कि थ्योरी अगर आपको पढ़ने में अच्छा नहीं है, क्या पता वही सेम चीज किसी और को अच्छा लगे, जैसे मेरे को थ्योरी अच्छा लगता है, समझ गए। तो लेकिन क्या है, ये हमारे लिए डिमेरिट कैसे हो रहा है, क्योंकि ये दोनों दोनों जगह के लिए, अलग अलग जगह के लिए हमारे लिए सेम नहीं है। तो अगर हम तुमसे सुने कि थ्योरी अच्छा नहीं है, अच्छा, तो मेरे लिए थ्योरी का कंसेप्शन अलग हो गया। अगर कोई मेरे से सुनेगा थर्ड पर्सन, उसके लिए थ्योरी का कंसेप्शन अलग है, लेकिन थ्योरी पार्ट सेम है, कंसेप्ट अलग कर रहा है, तो ये क्या है, ये डिमेरिट है। मेरिट कैसे हुआ, डिमेरिट हो गई नहीं ना, जैसे सेम इक्वल है ही नहीं। हिस्टोरिकल फोकस, अब देखो रेशियो में पहले क्या हुआ था, सब लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन यूजिंग पास्ट डेटा व्हाइल दे हाईलाइट ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड चल रहा है ये भी हाईलाइट करता है, दे मे नॉट फुल्ली रिफ्लेक्ट द कंपनीज करंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस। आगे क्या होने वाला है ये कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको तो एक्यूरेट डेटा चाहिए, आगे जो होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी करंट को और पास्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं, फ्यूचर हम लोग बता ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारे लिए कॉस्ट नहीं आता तो हम आउट ऑफ 75 कैसे लिख सकते हैं, तो फ्यूचर नहीं बता सकते, तो ये हमारे लिए डिमेरिट होना, क्योंकि फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को कंपनी चलाना पड़ता है। ओवरलुकिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, ज्यादातर हम लोग बाहरी चीजों को देखते हैं, दे डोंट अकाउंटेड फॉर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लाइक मार्केट कंडीशंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग पिछले साल हमारा कंपनी कितना कमाया था वो देख रहे थे, मार्केट में क्या चल रहा है वो नहीं ना देख रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो हटा दे रहे हैं, बाहरी चीजों को देखते हैं, हमारे कंपनी के जो ऊपरी ऊपरी चीजें उसको देखते रहते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस, कंपटीशन, ये सब कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर करते चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए क्या कहलाता है, डिमेरिट कहलाता है। लिमिटेड स्कोप इन आइसोलेशन, अ सिंगल रेशियो में नॉट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, एक रेशियो से आप कैसे ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं। टू गेट अ मीनिंगफुल इंसाइट मल्टीपल रेशियोज नीड टू बी एनालाइज्ड टुगेदर, बहुत सारे रेशियोज को आपको एक साथ में एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कंपनी में क्या चल रहा है। तो अगर आप मल्टीपल रेशियो एनालाइज नहीं करोगे, सिंगल रेशियो देखोगे, तो वो आपके लिए डिमेरिट। कंपैरेटिव चैलेंजेस, अब ये कंपेयर करते हैं कैसे कंपनीज कैन बी ट्रिकी इफ देयर अकाउंटिंग पॉलिसी साइज एंड ऑपरेशनल डिफर। सपोज हम लोग क्या बोले कि हम लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर कब करेंगे, जब मेरा कंपनी भी सेम होगा, उसका कंपनी भी सेम होगा, सेम जैसे मेरा कंपनी भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे, आपका कंपनी भी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे। अब अचानक से आप बोलोगे नहीं वो अलग है हम अलग है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे,
नहीं कर सकते ना। जैसे आप ही के क्लास में पढ़ रही हो कोई लड़की, आप ही के क्लास की हो, आप ही के सेक्शन की हो, वही टीचर उसको पढ़ा रही हो, वही सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, या फिर सेम उम्र का है, तब आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा देखो मेरे दोस्त को देखो, उसका इतना परसेंटेज है, मेरे इतना है। अब आप अपने से लो कैटेगरी के बच्चों को कंपेयर कर रहे हो, उसका इतना आगे मेरे इतना आगे, कोई कंपेरिजन है नहीं है। तो इससे हम लोग को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ये हमारे लिए क्या है, डिमेरिट है। तो क्या ये डिमेरिट क्लियर है आप लोग को, बोलो। थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। देखो यहाँ पे दो नाम है, क्योंकि इन लोग को हम लोग दो नामों से जान सकते हैं। इसको हम लोग लिक्विडिटी रेशियो भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोल सकते हैं। देखो लिक्विडिटी मतलब ही लिक्विडेट करना, सॉल्वेंसी मतलब ही लिक्विडेट करना, इसलिए हम लोग दोनों को कर रहे हैं। लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी इसको हम लोग बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशियो एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो आर essentially the same. They both focus on a comparative ability to meet short term financial obligations. जो शॉर्ट टर्म में मतलब कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन रहा है, उसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे, यही हम लिक्विडिटी रेशियो में देखते हैं। कैसे फुलफिल करते हैं, यूज करते हैं किसको, करंट एसेट्स को। जैसे हम लोग क्या बोले, करंट एसेट मेरा बॉन्ड है, करंट पेपर्स, उस बॉन्ड को ही हम लोग सॉल्वेंट करते हैं, तोड़ते हैं, उस बॉन्ड से जो भी पैसा मिलता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को फुलफिल करते हैं। यहीं पे अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हो गया तो लॉन्ग टर्म, जैसे एसेट हो गया फॉर इंश्योरेंस। These ratios are help measure financial stability. कभी कभार क्या होता है कि ये जो करंट एसेट्स बेच के हम लोग जो इस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, फिर कंपनी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता है ना। जैसे सपोज मान लो कि कोई भी अगर पार्टी आपसे आपका पैसा मांग रहा है, तो आप अगर इसको बेच के उसको पेमेंट कर दे रहे हो, तो क्यों केस कोई क्यों करेगा। आप तो सॉल्वेंट नहीं हो रहे हो ना, आप सॉल्वेंसी रेशियो को फॉलो कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे को सॉल्वेंट नहीं होना है, हमको बैंकरप्ट नहीं होना है, हमको लिक्विडेट करना है कि ठीक है मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं इस पेपर्स को बेच के मैं उससे कैश निकाल के इसको मैं पेमेंट कर देता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि जब आप लोग बैंक से लोन लिए हुए रहते हो, या फिर किसी एक पर्सन से लोन लिए रहते हो, बैंक को तो आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप किसी लोग से लिए रहे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जब आप टाइम दे तो उस टाइम के बाद वो बोलने लगते, देखो अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, तुम तो मेरे वादों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं, तब आप क्या करोगे, आपके पास पैसा ना होने के बावजूद भी या तो आप किसी और से उधार लो के उसको पेमेंट करोगे, या तो फिर आप अपने घर में हो सकता है आप अपना कोई कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, वहां से रिटर्न आया है, वहां से आप उसको पैसा चुकाओगे, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। ये पे अगर लॉन्ग टर्म होता तो आप हो सकता है अपने घर का जो ज्वेलरी है जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहती है उसको आप बेच के पैसा दे रहे हो। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताया एज अ कंपनी। ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है, देखो the current ratio is a key liquidity measures that assets a company's ability to pay short term liability. Current ratio मतलब हम लोग का जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म असेट से जब हम लोग पे बैक करते हैं, उसको हम लोग करंट रेशियो कहते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा पिक्चर जो कि हम लोग को दिखाता है कि बिजनेस मेरा एडिक्वेट रिसोर्सेज को, उस एडिक्वेट रिसोर्सेज, सपोज मेरे पास इतने सारे एसेट्स है, उसी एसेट से हम लोग अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे बैक कर रहे हैं या नहीं, दैट इज योर करंट रेशियो। दूसरा इसी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड रेशियो दैट इज आल्सो नोन एज, लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है, लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है, क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो का दो नाम है, क्या, लिक्विड रेशियो का क्विक रेशियो भी नाम है और एसेट टेस्ट रेशियो भी नाम है। ये एक लिक्विडिटी मैट्रिक है जो कि एसेट्स असेस करता है, देखता है कंपनी का एबिलिटी को देखता है, ताकि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए यूजिंग इट्स लिक्विडिटी
एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। अभी जो आपने शॉर्ट टर्म बॉन्ड को लिक्विडेट किया, आप उसको लिक्विड एसेट्स को फुलफिल कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, सेम है, दोनों ही सेम है, ठीक है। अनलाइक द करंट रेशियो, करंट रेशियो को हटा के, जैसे इट एक्सक्लूड्स इन्वेंट्री, करंट रेशियो में हम लोग इन्वेंट्री को एक्सक्लूड्स कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, सिंस दे माइट नॉट बी इजीली कंफर्टेबल, क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉक है हमारा, शॉर्ट टर्म स्टॉक हो सकता है, लॉन्ग टर्म स्टॉक हो सकता है कभी कभार इसको हम लोग कन्वर्ट पैसों में ना कर पाए। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम लोग पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरे कन्वर्टेबल जो कैश होते हैं शॉर्ट टर्म में, उसको हम लोग कन्वर्ट करके अपने लिक्विड को पेमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ liquid ratio or solvency ratio. The third type is cash ratio. Cash ratio is highly conservative liquid. Obviously, cash is itself a liquid. तो ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, highly conservative liquid measures that examines a company's ability. और कैश आपकी कंपनी में जितना पड़ा हुआ रहेगा, उससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है आपके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे बैक करने के लिए। अगर ऑलरेडी आपके पास कैश है, आपको कुछ लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश इज इटसेल्फ अ लिक्विडेट टर्म, सो इट एक्सक्लूड्स अदर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की क्या जरूरत है आपके पास अगर कैश है तो, सच एज रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, टू गिव अ स्ट्रिंजेंट असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। आपके पास ऑलरेडी कैश है, आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पा रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है दूसरे से और कैश को तुड़वाने की। देयर आर द थ्री टाइप्स। ये क्लियर है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो अच्छे से समझना है, ये सारा चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, एक मिनट। Capital structure ratio, solvency ratio, long term solvency ratio. These are the three names. उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसको हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, जो कि कंपनीज एबिलिटी को देखता है कि आप कितना सस्टेन कर सकते हो। सस्टेन मीन्स टू स्टे। और आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, हम लोग का शॉर्ट टर्म पढ़ लिया, अब ये क्या है, लॉन्ग टर्म है, तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी है उसको हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इस रेशियो से हम लोग को ये दिखता है कि हमारा जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो हमारे बिजनेस में कितना स्टेबल है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो, डेटर्स इक्विटी रेशियो, द फाइनेंशियल मैट्रिक दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनीज डेट एंड शेयरहोल्डर्स इक्विटी। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो दैट इज डेट बाय इक्विटी। सब कुछ फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, अभी इस चीज को समझो। किससे हम लोग डेटर्स इक्विटी रेशियो को देखते हैं, जो कि हमारे लिए दिखाता है कि हमारा जो रिलेशन है हमारे डेट से, डेटर से और हमारे इक्विटी से। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहाँ पे देखते हैं, डेट इक्विटी रेशियो। इन सबको आपको याद करना होगा। ठीक है, सारा फॉर्मूलाज मैंने एक जगह पे लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि फॉर्मूलाज को ढूंढना पड़े। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो का है, तो मैंने क्या किया है, डेट जितने सारे इसके टर्म्स है उन टर्म्स को एक जगह पे डिस्क्राइब किया है, और जो फॉर्मूलाज है आपको लर्न करने में आसानी, उसको एक जगह पे रखा है ताकि आपको आसानी ज्यादा हो। प्रोप्राइटरी रेशियो, द प्रोप्राइटरी रेशियो को हम लोग इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। ये एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स इक्विटी को टोटल असेट्स दिखाता है, टू द टोटल असेट्स ऑफ अ कंपनी। प्रोपोर्शन दिखाता है हमारे इक्विटी से हमारे असेट का। इट रिफ्लेक्ट कि कंपनी का जो असेट है वो कैसे मैनेज हो रहा है हमारे ओनर से। ओनर कैसे, ये शेयर होल्डर्स का इक्विटी। शेयर होल्डर क्या है हमारे लिए, ओनर है। तो ओनर हमारे डेट, जैसे डेट ऊपर हम लोग पढ़े, तो डेटर को छोड़ के हमारा ओनर किस तरह से फाइनेंस कर रहा है हमारे असेट्स को, ये कौन दिखाता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। जैसे ऊपर जो इक्विटी था, डेट इक्विटी रेशियो, वो हम लोग को क्या दिखाता था कि हमारा जो शेयर होल्डर है हमारी इक्विटी को कैसे एसेस कर रहा है, और यहाँ पे दिखाता है हमारा जो शेयर होल्डर है हमारी असेट को कैसे एसेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक दैट measures the proportions of a company borrowed fund to its equity. अब गियरिंग रेशियो में बोरो, जब हम लोग डेट से बोरो कर रहे हैं, इक्विटी
इक्विटी के साथ, तब हम लोग इसका गियरिंग रेशियो देखते हैं। एक हेल्प करता है, ये क्या हेल्प करता है, फाइनेंशियल रिस्क को देखने का, एनालाइज करना का मदद करता है, एंड स्टेबिलिटी को दिखता है, पर्टिकुलर इट्स रिलायंस की आपका डिपेंडेंसी दिखता है, डिपेंड ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल इट्स ऑपरेशन। ये है गियरिंग रेशियो। सारा फॉर्मूला जब आप पढ़ोगे ना तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फिक्स असेट्स प्रोप्राइटरी रेशियो। अब फिक्स असेट्स मतलब ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किसको देख रहे हैं, फिक्स असेट्स को देख रहे हैं। तो फिक्स असेट प्रोप्राइटरी रेशियो क्या दिखता है, टू एक्सटेंड विच कंपनीज फिक्स असेट्स आर फंडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब फिक्स असेट्स, शेयर होल्डर जो है, जो हमारे लिए ओनर है कंपनी के, वो हमारे फिक्स असेट्स को किस तरह से यूटिलाइज करे, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है, ये एक एनालाइज देता है देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर हमारे प्रोप्राइटरी फंड्स फिक्स असेट्स के लिए कैसे डिपेंडेंट है। Interest coverage ratio. The interest coverage ratio is a financial metric that measures a company ability to pay interest. Interest मतलब ही क्या? Interest pay करना by outstanding debt using its earning before interest and taxes. EBIT सबको पता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इट्स अ की इंडिकेटर बाय फाइनेंशियल हेल्थ एंड डेट सस्टेनेबिलिटी. इस रेशियो से हम लोग को हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है, हमारा कंपनी कितना और ज्यादा स्टेबल है, सस्टेन है, स्टे कर सकता है, इस चीज का पता चलता है. बोलो 5 चीजें क्लियर है हमारे इस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का. इज इट ओके? समझ में है? ये सब कुछ घर पे पढ़ना. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब ही हम लोग प्रॉफिट जिसमें देखते हैं ताकि हमारे कंपनी का एबिलिटी देख पाए टू जनरेट प्रॉफिट. कहाँ से हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं? रिलेटिव टू इट्स रेवेन्यू, असेट्स, शेयर होल्डर्स इक्विटी. देखो रेवेन्यू से प्रॉफिट हम लोग कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? हमारे रेवेन्यू से, हमारे एसेट से, हमारे शेयर होल्डर्स इक्विटी से. सो दे आर वाइटल, मीन्स इम्पोर्टेंट फॉर असेसिंग फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ठीक है. इसके कुछ टाइप्स हैं. क्या क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. प्रॉफिट मतलब ये, अब हम लोग प्रॉफिट पे बात करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब आपको समझ में आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों को पता है. इससे हम लोग क्या देखते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी रिलेटिव टू इट्स सेल्स. सेल्स माइनस कॉग्स इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ये इंडिकेट करता है हमारे जनरेटिंग प्रॉफिट को कोर ऑपरेशन से, जो हम लोग एक्चुअली में सेल करके ऑपरेशंस क्या है, यही हमारा काम ही है. कोर ऑपरेशन से जो हमारे प्रॉफिट को फाइंड आउट होता है वो हम लोग को पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, बिफोर कंसिडरिंग अदर एक्सपेंसेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या? ऊपर सेल्स करते हैं, सेल्स माइनस कॉग्स. जैसे ही हम लोग सेल्स माइनस कॉस्ट को अगर हम लोग हटाते हैं तो सिंपल हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल जाता है. उसमें से हम लोग क्या एक्सपेंसेस माइनस करते हैं? नहीं माइनस करते. सब कुछ बचा हुआ रहता है. हम लोग लोन माइनस करते हैं? नहीं करते. हम लोग टैक्स माइनस करते हैं? हम लोग नहीं करते. तो इसके अलावा जो कोर हमारा काम है, जो इम्पोर्टेंट, जो जिसके लिए हमारा कंपनी बना है, उससे जब हम लोग प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल रहे हैं. जो मेन इफेक्टिव काम क्या है? सेल्स का. उसके बाद हम लोग नेट में आ रहे हैं. सिमिलरली नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? जब हम लोग आफ्टर ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर हम लोग जब एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, टैक्सेस को माइनस करते हैं, कॉस्ट को माइनस करते हैं, जो परसेंटेज हम लोग को दिखता है नेट प्रॉफिट जनरेटिंग from net sales and vital indicator, that is important indicator of a company's financial health. सब कुछ को एक्सपेंस को माइनस करके जो हम लोग को पता चलता है, that is your net profit ratio. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? ये हमारे कोर ऑपरेशंस को दिखाता है, जैसे जनरेटिंग प्रॉफिट बाय इट सेल्स एंड इट एक्सक्लूड्स. ये किस चीज को एक्सक्लूड करता है? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू. जो हमारे लिए और नॉन ऑपरेटिंग, जैसे हम लोग एक्स्ट्रा अदर जगह से हम लोग रेवेन्यू इनकम करें, उसको नहीं. जो हम लोग ऑपरेटिंग, हम लोग सीखे थे ना हमारे FRFSA में, इनकम स्टेटमेंट में नॉन ऑपरेटिंग, तो उसके पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो हमारे लिए यहाँ पे फोकस करना है. ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो
ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये ऑपरेटिंग रेशियो है। सो ऑपरेटिंग रेशियो इवैल्यूएट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनीज ऑपरेशंस बाय कंपेयरिंग इट्स एक्सपेंसेस टू इट्स नेट सेल्स। ये कंपेयर करता है, कंपेयर क्या करता है, देखो, कंपेयर इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू इट नेट सेल्स। ये वाला अंडरलाइन नहीं हुआ, ये वाला बाकी रहेगा, ये एक अलग पॉइंट है, ऑपरेटिंग रेशियो। The operating ratio, that is OER, एक्सपेंस रेशियो, ये क्या दिखाता है, मैनेज करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमारे रेवेन्यू से रिलेट करके, जो कि हम लोग कॉमनली रियल एस्टेट में देखते हैं, एग्रीकल्चर में देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं। समझ में आया? अब बोलो, ये समझ में आया आप लोग को? प्रॉफिट, ये बहुत इजी था, आप लोग को पता है तो शायद आप लोग को समझ में आ जाए। बोलो, ये समझ में है? ओके, नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इम्पोर्टेंट, दैट इज ROCE. Both return on investment and return on capital employed are the key financial metrics used by the कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी के जो रिसोर्सेस से हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को समझ में आया, अगर हम लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं उससे जब हम लोग को रिटर्न मिलता है, ठीक है। सो हम लोग इस दो पॉइंट को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोग को पता है, तो लेट्स फोकस्ड ऑन ROCE, जो कि एक्सेस करता है कंपनी की एफिशिएंसी की कैसे जनरेट कर रहा है हमारे प्रॉफिट को, कौन, कंपनी, फ्रॉम इट्स ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड, बोथ इक्विटी और डेट के साथ हमारा कंपनी कैसे प्रॉफिट क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, कैसे प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है, ये हम लोग को ROCE दिखाता है। और ROI दिखाता है कैसे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आ रहा है, उसके कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। देखो वापस से मैं बताती हूँ, ROI हमारे कॉस्ट को ध्यान में रखता है, समझ में आया, ये हमारे डेट और इक्विटी को ध्यान में रखता है, बस जनरेट दोनों ही प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट प्रॉफिट, बस ये कॉस्ट को देखता है और ये डेट और इक्विटी को देखता है। यहाँ पे देखो ROI प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, और ये क्या करता है, ओवरऑल कैपिटल, डेट और इक्विटी मिला के हमारा ओवरऑल कैपिटल होता है। ये फोकस कहाँ करता है, सिंगल प्रोजेक्ट पे करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिंगल वेंचर पे कर रहा है। ये क्या करता है, बिजनेस ऑपरेशंस पे ज्यादा ध्यान देता है, क्यों, क्योंकि इस पे कैपिटल है, बिजनेस पे कैपिटल है, ठीक है। इसका देखो क्या क्या है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ऑन रिटर्न ऑन नेटवर्थ योर व्हाट, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, इसका शॉर्ट टर्म है ROSF, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इट इज अ metric, financial metric to use measures profitability of a company relating to equity. इक्विटी से कैसे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वो देखता है। इट रिफ्लेक्ट हाउ इफेक्टिवली द कंपनी यूटिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर्स टू जनरेट अर्निंग, किस तरह से आप जनरेट अर्निंग कर रहे हो वो यहाँ पे शो होता है। सब कुछ सम्स करते जाएंगे ना, आपको समझ में आता जाएगा, डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपका भी पहला क्लास है। जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे, जैसे जैसे फॉर्मूला करेंगे और ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, आई होप कि आप सबको पता है कि हम लोग का जो भी टोटल शेयर आता है, जितना हम लोग अर्न करते हैं उसको हम लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, EPS, दैट इज योर अर्निंग पर शेयर। It is a financial metric that measures the amount of profit to each share of stock, common stock. It is widely by investors to evaluate a company's profitability and make comparison among the companies. ठीक है, जैसे इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, कितना है, ये हमारे लिए मदद करता है। दो तरह का अर्निंग पर शेयर होता है, एक होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बेसिक क्या होता है, हम लोग वेटेड नंबर को और कॉमन शेयर्स को आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, जो कि हम लोग बेसिक जानते ही हैं। डाइल्यूटेड क्या होता है, जब हम लोग कन्वर्टेबल शेयर्स को देखते हैं, ऐसा कोई सिक्योरिटी शेयर्स जो हम लोग का फ्यूचर में कन्वर्ट हो सके। सपोज मान लो डिबेंचर, जो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है, हमारे इक्विटी शेयर वो कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर, उसको जब हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स EPS निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर, उसको हम लोग डाइल्यूटेड बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल शेयर जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बेसिक EPS बोलते हैं, ठीक है। अब इस
इसमें एक और कैटेगरी क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। सो डिविडेंड ये सब कुछ कहाँ पे आ रहा है, देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूएशन ROC। डिविडेंड पे आउट रेशियो, द डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या क्या दिखाता है हमारे लिए, अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। कितना आप अपना इनकम को डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे आप दे रहे हो, उसका एक रेशियो जब हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं। इससे हम लोग को क्या मदद मिलता है, इन्वेस्टर्स को मदद मिलता है कि कंपनी के प्रॉफिट को अच्छे से वो देख पाए कि कितने प्रॉफिट में से आप कितना, हाउ मच ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट इज रिटर्न टू देम, कितना हम कंपनी के प्रॉफिट को आपको एज अ डिविडेंड रिटर्न कर रहे हैं बिटवीन द रिटेन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। और फ्यूचर के लिए जब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस रख देते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सके, उसको रखने के बाद आप कितना डिविडेंड आपके शेयर होल्डर्स को दे रहे हो एज अ प्रॉफिट, तो उसको, उसका जो रेशियो हम लोग निकालते हैं उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं, बिकॉज डिविडेंड इज पेइंग आउट। प्राइस अर्निंग रेशियो, तो प्राइस अर्निंग रेशियो एक की फाइनेंशियल है जिससे हम लोग को क्या पता चलता है, स्टॉक प्राइस ऑफ रिलेटेड इट्स अर्निंग। जितना आप अर्न कर रहे हो उसका जो मार्केट प्राइस है उसको हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टर्स ये देखते हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड है कि नहीं, ज्यादा प्राइस है कि नहीं, या कम प्राइस है कि नहीं। इट इज टू अर्निंग पोटेंशियल, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, ये सब कुछ हम लोग इससे देखते हैं, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी रेशियो, दैट इज मैनेजरियल इफेक्टिवली। एक्टिविटी रेशियो एक नाम है, दूसरा है मैनेजरियल इफेक्टिवनेस रेशियो, तीसरा है टर्नओवर रेशियो। ये तीन नामों से हम लोग इसको जानते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी रेशियो से ही हम लोग को पता चला, दैट इज एक्टिविटी रेशियो एट देयर। सो इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी यूटिलाइजेस इट्स एसेट्स। अब बात आ रहा है एसेट्स का, नॉट प्रॉफिटेबिलिटी का। तो एसेट किस तरह से जनरेट कर रहा है हमारे रेवेन्यू से, रेवेन्यू इनकम हो रहा है तभी तो उस पैसे से आप कुछ एसेट्स खरीद रहे हो, आप उस एसेट्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो ये देखना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, दैट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, अकाउंट्स रिसीवेबल्स रेशियो, दे शो ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एसेट usage। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस रेशियो जो ऊपर नाम दिया हुआ है, दैट इज इवैल्यूएट द मैनेजमेंट इन रिसोर्सेज सच एज प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ, किस तरह से आप इस चीज को मैनेज कर रहे हो। लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी, लाइक रिटर्न ऑन एसेट्स आर ऑफन कंसिडर्ड, बहुत रेयरली इसको कंसिडर हम लोग करते हैं, ठीक है। Turnover ratio, it is typically to turnover or the employee turnover ratio for the inventory. Turnover means your stock, it assets the rate at which inventory is sold। हम लोग देखते हैं कि किस प्राइस में आपका स्टॉक बेचा गया है या कितने टाइम पीरियड में वो रिप्लेस्ड हुआ है। फॉर एम्प्लॉइज ये क्या देखते हैं, वर्क फोर्स रिप्लेसमेंट, द रेट, कितना प्राइस आपको लग रहा है इसको रिप्लेसमेंट करने में। ये तीन ही तरह के हैं। अब इन तीन, इसका नाम हमने पहले से बता दिया कि एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, मैनेजरियल इफेक्टिव रेशियो क्या होता है, टर्नओवर रेशियो क्या होता है। अब इसका जो टाइप्स है वो हम लोग अब करेंगे, दैट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इससे आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक का जो हम लोग देखते हैं, जो मेनली स्टॉक पे काम करता है, हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसको ही हम लोग इस टर्नओवर रेशियो में देखते हैं। एक बार फिर भी रीड कर लो, देखो ये क्या मैनेज करता है, हमारे इन्वेंटरी को मैनेज करता है, दैट इज योर स्टॉक। हाउ मेनी टाइम्स, कि एक साल में आपका जो स्टॉक है वो कितने बार खरीदा बेची हुआ। जब हम लोग इस रेशियो को देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, द डेटर टर्नओवर रेशियो को हम लोग अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ये सब कुछ याद रखना। मेजर्स हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम इट्स क्रेडिट सेल्स, इट्स इवैल्यूएट हाउ क्विकली रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ऑब्वियसली वहां पे डेटर को देख रहा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में हम लोग स्टॉक को देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स को देख रहे हैं कि हाउ इफेक्टिवली हम लोग पेमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिटर को। गुड टू गो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कितने कितने बार आपका कैपिटल से आपका जनरेट हो रहा है क्या, रेवेन्यू।
ये देखना ही हमारा क्या है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। ये रिफ्लेक्ट करता है आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, कि आप कितना सेल करके उस पैसे को कितने अच्छे तरीके से यूज करें। फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो हम लोग बता दिए हैं कि ऑब्वियसली फिक्स असेट्स को देखेंगे, जैसे प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्लांट को देखते हैं, इक्विपमेंट को देखते हैं कि सेल्स से हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, असेट टर्नओवर रेशियो ऑब्वियसली लोग किसको देखेंगे, असेट को देखेंगे, टोटल असेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। इट हाईलाइट करता है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स असेट्स एज अ की इंडिकेटर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। गेटिंग माय पॉइंट? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मेक श्योर करता है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है, जो पैसा आपका चल रहा है, वर्किंग कैपिटल किसका, ऑपरेशनल, ऑपरेटिंग बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कैपिटल, ये जो है जिससे हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, उस पे हम लोग किस तरह से रेवेन्यू को जनरेट कर पा रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल आपके लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी है, वर्किंग कैपिटल अभी आप काम करा रहे हो, अभी आप खत्म कर रहे हो, तो आपका जो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज है उसको आप किस तरह से मैनेज करते हो शॉर्ट टर्म पैसे से। एक चीज आप क्लियर रखो कि शॉर्ट टर्म चीजों को हम लोग शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट से मैनेज करते हैं, लॉन्ग टर्म चीजों को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे आपका इक्विटी है, आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, शॉर्ट टर्म के करंट एसेट्स है। समझ में आया? अब यहाँ तक देखो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, हम एक एक करके पॉइंट दिखा रहे, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है तो वो भी बताओ। ठीक है, टाइम एक बार देख लो। क्लियर? फिर भी कुछ भी डाउट होगा क्लास के बाद पूछना। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूलाज पे। ठीक है, आज भर हम आपको जरूर टाइम देंगे कि आप लोग सारे थ्योरी को पढ़ो, सारे फॉर्मूलाज को पढ़ो, समझो, उसके बाद याद करके रखना, एंड देन कल हम लोग क्या करेंगे, हमारा
जो प्रैक्टिकल सम्स है उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूलाज क्या है, लेट्स डिराइव इट। करंट रेशियो हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग करंट चीजों को देख रहे थे, क्या करंट एसेट्स को देखेंगे और करंट लाइबिलिटी को देखेंगे। आपके क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी गिवन होगा कि करंट एसेट्स का रेशियो इतना है। सपोज वहां पे दिया होगा कि क्विक करंट रेशियो 2:1 सपोज, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझ में है। सो ऐसे करके दिया हुआ रहता है। लिक्विडिटी रेशियो दिया हुआ रहता है, सपोज लिक्विड रेशियो दिया है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। सपोज लिक्विड रेशियो दिया है 3:2, उसको हम लोग को क्या करना है 3:2, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटी, ठीक है। अब लिक्विड रेशियो होता क्या है, जैसे लिक्विड रेशियो को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये लिक्विड एसेट्स होगा, लिक्विड एसेट्स को कैसे निकालेंगे और लिक्विड लाइबिलिटी को कैसे निकालेंगे। लिक्विड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स को ऐड करेंगे, कैश एंड बैंक को ऐड करेंगे, दैट इज लिक्विड एसेट्स। वी विल सॉल्व इट, डोंट वरी। लिक्विड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट कैश, नॉट ओनली कैश, ठीक है। ये सब कुछ आपको दे दिया है। एक जगह पे मैंने फॉर्मूला लिखा है क्योंकि क्या होता है कभी कभार, अभी इतना सारा टर्म्स हम लोग पढ़े, अब आपको ढूंढना पड़ता वहां पे बैठ के कि अच्छा कौन सा वाला टर्म्स है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, ऐसे करके हम लोग को ढूंढना पड़ता है, तो क्या होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको एक जगह पे फॉर्मूला दे दे, तो सिर्फ फॉर्मूला पेज अगर आप देख लोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, एंड इट इज वेरी इजी टू मेक यू फाइंड व्हाट वेयर इज द फॉर्मूलाज। वहां पे एक एक टर्म में देखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इन माय कंसेप्शन दैट वाज आई मेक इट on a separate page. Okay, एक चीज यहाँ पे नोट है, इफ इन क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, किस किस चीज का मिसिंग होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मिसिंग है, बैंक ओडी का मिसिंग है, कैश क्रेडिट का मिसिंग है, देन वी विल अज्यूम इट एज अ नील। मिसिंग है मतलब भी क्या नील करेंगे, बट ऐसा नहीं कि आप अकाउंट ही नहीं करोगे इसका, मतलब उसको लिखोगे ही नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं कैश रेशियो में। कैश रेशियो क्या है, कैश लेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको दिया हुआ रहेगा, करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर करंट रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से हम लोग का करंट लाइबिलिटी निकल जा रहा है, तो अब यहीं पे अगर हमको कैश रेशियो दे गया तो करंट लाइबिलिटी सपोज वहां पे अगर 10 आया तो यहाँ पे भी मेरा 10 आएगा, हमको तो निकालना है। क्योंकि करंट, एक चीज को समझो कि ये जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो 2:1 दे दे, तो इससे तो हम लोग करंट लाइबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो अगर हम करंट लाइबिलिटी को करंट एसेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगर इन दोनों में से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे करंट लाइबिलिटी लग रहा है तो हम करंट लाइबिलिटी का वो टर्म यहाँ पे लिख देंगे। कैश ऑलरेडी गिवन होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑलरेडी गिवन होगा, अगर नहीं भी गिवन होगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि कैश रेशियो तो गिवन होगा। ऐसे ही करके हम लोग को समझ करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। डेट इक्विटी, मैंने ऊपर ही क्या बोला था आपको, डेट बाई इक्विटी। अब डेट कैसे निकालना है, लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिबेंचर, सिंपल डेट। इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है, इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी कैसे निकालोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, आपका इक्विटी निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बोलो क्लियर हो रहा है। प्रोप्राइटरी रेशियो, देखो ये सारा पॉइंट हम लोग ऊपर अलग अलग से एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं कि आपको बस फॉर्मूला दे दिए पढ़ो, ऐसा नहीं है। सारा एक एक जितना सारा आपको ब्लू पॉइंट दिख रहा है सब कुछ ऊपर हम लोग लिख चुके हैं ताकि आपको उसका मतलब भी समझ में आ जाए, एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द फॉर्मूलाज आल्सो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। टोटल एसेट्स, अब बताओ ऊपर जब लोग करंट एसेट्स निकाले, कंपनी वहां पे टोटल एसेट्स दिया हुआ रहेगा, समझ गए। लेकिन प्रिलिमिनरी में ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग को क्या करना है, लेस, ठीक है। गियरिंग रेशियो हम लोग ऊपर अभी पढ़ के आए थे। टोटल डेट, अब देखो डेट कैसे निकलेगा, ये रहा, यहाँ पे हम लोग डेट निकाले थे, लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिबेंचर, तो डेट हमारा निकल गया। तो यहाँ पे अगर डेट मेरे को लग रहा है तो हम डेट यहाँ पे लिख देंगे। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी भी हम लोग निकल गया था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे निकाले थे ना, शेयर होल्डर्स फंड, बस दोनों हम लोग पुट कर देंगे तो गियरिंग रेशियो भी निकल जाएगा एकदम, मतलब एक एक चीज से दूसरा चीज कनेक्टेड रहता है,
ठीक है, इसलिए सारा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। स्टिल हम यहाँ पे अलग से लिख दिए हैं शेयर होल्डर्स फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, फिक्स एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स एसेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड, इसको हम लोग नेटवर्थ रेशियो भी बोलते हैं या इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। फिक्स एसेट्स तो आपको पता है, प्रोप्राइटरी फंड अभी हम लोग ऊपर निकाले, दिस वन वही लिख देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBITDA, that is earning before interest, tax, depreciation and amortization. I hope you remember about the amortization. If it is given in question, we can less it, और अगर EBITDA दिया हुआ है तो सिंपल आपको बस अमाउंट यहाँ पे पुट करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, बस इंटरेस्ट कैपिटल रेशियो आ जाएगा, सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GP बाय रेवेन्यू, GP is your gross प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉग्स, जैसे ही आप करते हो आपका जीपी निकल जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया रेवेन्यू या फिर दैट इज सेल्स, आल्सो सेल्स माइनस कॉग्स। कॉग्स क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट चार्जेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन सबको मिला के बनता है कॉग्स। अगर कॉग्स दिया हुआ रहे इन क्वेश्चन तो सिंपल है, अगर नहीं दिया हुआ है इसमें से अगर कुछ दिया हुआ है उसको लिखेंगे, अगर इसमें से सपोज मान लो कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको क्या लेंगे, नहीं। ठीक है, सपोज मान लो अगर हम लोग मानिए, एक मिनट, सपोज मान लो ये 10 दिया हुआ है, परचेज 20 दिया हुआ है, ये नील दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, या इसको भी 10 पकड़ लो, तो ये आपका 10 दिया हुआ है, ये नील है, कितना हुआ 30, 40 माइनस 10, दैट इज 40 माइनस 10, बस कॉग्स निकल गया। सेल्स दिया हुआ है, सेल से माइनस कर दो कॉग्स, जीपी निकल जाएगा। ठीक है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो सेम, नेट प्रॉफिट बाय टोटल रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग इनकम से नेट सेल्स। अगर मेरा जो इनकम है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, मेरा जितना सेल हुआ है तभी तो हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाएंगे, समझे। ऑपरेटिंग रेशियो देखो ऊपर था ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग था, ऑपरेटिंग रेशियो अलग था, बस इसमें क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट देखना है नेट सेल्स, इसमें ऑपरेटिंग इनकम देखना है बाय नेट सेल्स। ये सब लॉजिकली याद करना होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा कितना लग रहा है, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय टोटल ऑपरेटिंग सेल्स हो सकता है, ऑपरेटिंग इनकम हो सकता है, सेम थिंग, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। यहां तक क्लियर है, बोलो। वी आर गोइंग टू हैव अ वीडियो कॉल, सो दैट आप लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में कोई भी डाउट है तो अभी पूछना है। ठीक है, ROI EBITDA बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, शेयर होल्डर्स फंड, याद है ऊपर हम लोग शेयर होल्डर फंड निकाले थे, लॉन्ग टर्म लोन आपके उसमें ऑलरेडी गिवन रहेगा, डिबेंचर ऑलरेडी गिवन रहेगा, बस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, EBITDA हम लोग ऊपर निकाले थे, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल जाएगा, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो EAT हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले थे, आफ्टर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। अर्निंग बिफोर अर्निंग पर शेयर, दैट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये तो सबको पता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब यहां से हम लोग अर्निंग पर शेयर निकाले, यहां से ये हम लोग लिख सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर हम लोग को दिया हुआ रहेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर अभी हम लोग यहां से निकाले, ये यहां से भी आ सकता है, बस। इन्वेंट्री स्टॉक्स लग रहा है तो एवरेज स्टॉक तो लेंगे,
और कॉस्ट, कितना मेरा कॉस्ट लग रहा है और कितना मेरा एवरेज स्टॉक है, उसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इससे हम लोग को क्या मतलब पता चलता है कि हम लोग के साल में कितना स्टॉक का टर्नओवर हो रहा है। ठीक है, उससे हम लोग एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब स्टॉक वेलोसिटी क्या होता है, देखो स्टॉक वेलोसिटी में कितने बार आपका इन्वेंट्री टर्नओवर हो रहा है। जैसे हो सकता है मंथली टर्नओवर हमको निकालना पड़ जाए तो डिवाइडेड बाय 12, अगर डेज में निकालना पड़ जाए तो 365 डेज, और एनीथिंग इफ क्वेश्चन में अगर 360 गिवन है तो लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे 360 बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यहाँ से मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो सपोज मान लो मेरा 1:1 आया, तो यहाँ पे हम लोग 365 डिवाइडेड बाई 1:1 कर सकते हैं, यानी 365 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी 365 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 365। यही सॉल्व हो गया। कितना टाइम लगेगा, स्टॉक वेलोसिटी मतलब 360 डेज, इतना बार, इतना दिन मेरा स्टॉक टर्नओवर है, सम्स करेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट सेल्स, डेटर टर्नओवर मींस क्या, कितना हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, कितना हम एवरेज ट्रेड रिसीव कर रहे हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। इफ क्रेडिट सेल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, मे भी नहीं देगा, देन हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में उन सबको हम लोग एज अ क्रेडिट सेल कंसिडर कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सेल्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्रेडिट सेल को ही सेल्स को ही क्रेडिट सेल को कंसिडर करेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो है ये, डेटर वेलोसिटी सेम एज स्टॉक वेलोसिटी, वैसे ही है ये डेटर टर्नओवर वेलोसिटी। अभी देखो स्टॉक वेलोसिटी पढ़े थे, यहाँ है स्टॉक, यहाँ है स्टॉक टर्नओवर, यहाँ स्टॉक वेलोसिटी, यहाँ है डेटर टर्नओवर, यहाँ है डेटर वेलोसिटी। अब आएगा क्रेडिटर टर्नओवर, तो क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज एवरेज ट्रेड पेबल, और क्रेडिट परचेज दिया हुआ रहेगा। और अगर क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में सेपरेटली, हम्म एक मिनट है। Just 2 minutes. Validation. Get back to Kiran. Okay, let's focus on the points again. So if अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, इट्स नॉट गिवन सेपरेटली, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल सेल्स को ही हम लोग क्रेडिट परचेज कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है। इफ क्वेश्चन में आपका क्रेडिट सेल्स नॉट गिवन, then we will consider all the sales are credit sales. If in question credit purchase is not given, then we will consider all the sales as a credit purchase to find out the creditor's turnover ratio as per our formulas. I hope it is clear. Then as per we have known the stock turnover ratio, stock velocity, then we are going to
Then we have learned the debtor turnover ratio plus debtor velocity. Now we are learning the credit turnover ratio plus creditors velocity. Here it is 12 by 365 days. If in question it is mentioned 360 days, then we will consider as a 360 days, and it will be creditors turnover ratio. Whatever we have learned, whatever the ratios we have applied here itself. All right. I hope it is clear now. Let's come to the next 5 points. See, fixed turnover ratios, what we are considering as a fixed assets. Okay, sales we are going to consider, average fixed assets we are going to consider, and fixed assets opening, that is we are going to consider as a average fixed assets dividing by sales. That's it. If we are having the capital turnover ratio, that is sales by average capital employed, that is opening capital employed plus closing capital employed divided by 2. That is the only formula to having the average tendency. If it is already given in question, then we don't have to worry about it. If it is not given like this ways, we can find it out. Okay, asset turnover. Obviously, we will deal with the total assets dividing by sales. This is absolutely as simple as that. Working capital, we will be having the working capital divided by sales. In this page, we are all have the sales divided by what are the formulas we are going to asked the questions. So what is working capital? If it is not given, how will you can find? That is current assets minus current liability. I hope some of you is already known. Some of you is already known about the current assets minus current liability is working capital. You know about it. So if you don't know about it, that is your working capital. We will assuming the current assets minus current liability is equal to working capital. We will divide the sales by working capital. Okay, so that will be comes as a working capital turnover ratio. Is there any problem you are facing? Do let me ask. Or still, if you have not problem, we are joining in a conference right now, so that we can understand better. You are going to like having any doubt, we will solve it there. ये जितना मैंने पढ़ाया है, is it clear to you till now? See. This PDF will be provided after including your sums. These you have to learn. Okay. I hope everyone it is clear. Okay, thank you. So basically you have to learn all the theories. Okay. So you can't. So you have to learn all the theories. So don't skip any of them, and you have to learn the formulas you have getting. Formulas you have already known about it. So after, let me know after clarifying the formulas, I hope the theories, if you have any doubt about it, if the conceptual basis is not clear over there, now it is clear. When you will having the practical sums, it will be more clear after solving it. So don't worry about it, we are joining just right now. Okay, so you will be having this class recording within half an hour. So do let the recording watch once again, so that you can clarify more about it and prepare at your home. Next day we will solve the questions. Okay. Thank you for today. Thank you.